ये जो Okay, good morning, everyone. I hope I'm audible to you, and but I can see that very few entered their name in chat box. So you must ensure that your name is there in chat box for your attendance. Anyway, uh, in previous lectures, what we have seen is about structure, basically, and we have seen how to declare a structure, define a structure, how to declare a structure variable, na, how to take input in a static input or a dynamic input. When I say dynamic input, I wish to say by using this scan function and all, right? And how to print, na, that we have already seen, right? So this we call definition of a structure, and this we call declaring variable of a structure. So B1, B2, B3 are three variable of type struct book, like int B1, int B2. This is struct book B1, struct book B2, struct book B3. And this is the way in which we can scan the elements of these variable, because int
नाउ ईच वेरिएबल कंटेन्स 3 वेरिएबल इनसाइड, है ना। ये B1 एक अपार्टमेंट है जिसमें 3 अलग अलग टाइप के कमरे हैं, राइट। सो दैट्स व्हाट वी मीन टू से, एंड दिस इज द मॉडल ऑफ एन अपार्टमेंट, right? Said every apartment could have a room like car, room like floor price, and a room like it pages. And B1 is the name of that apartment. So individual room could be filled in this way, and individual room could be printed in this way. Individual variable within B1, B2, and B3, right? So this is exactly this work exactly similar to our earlier variable. There is no any allocation difference, syntactical difference, nothing. It is exactly similar to whatever we are learning from the very beginning. Any doubt till that, till this topic? Anyone? You can write yes or no. Out of 14, only 11 entered their name in chat box. So I encourage you to enter your name in chat box. Otherwise, your uh, attendance will not be marked. So every day I'm telling you, but what can I do? Okay. So we have seen this part. I hope you went through the book, and this is one of the way in which we are assigning values. This is the memory allocation, memory map, that how three different variable are stored within a single name. An array of structure I have started in last lecture and told you कि अगर ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। तो अभी यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। एनीवन? एरे ऑफ स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में बताया था, इज क्लियर टू यू? तो लेट मी आस्क यू वन। अरिहंत, क्लियर है अभी तक? Yes, sir. हाँ, एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर है? Yes, sir. Clear है. अर्जुन? यस सर क्लियर है। ओके ओके। अश्विन शर्मा? अश्विन शर्मा, Yes, sir. हाँ क्लियर है स्ट्रक्चर? Yes, sir. Okay, good. Then Bharti, Bharti, are you reading these days? Meaning, did you went through this book? यस सर। बुक पढ़ा था क्या बेटा आपने? नो सर। पढ़ना चाहिए। कैसे करोगे? बुक अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए। एक ही तरीका है टॉपिक्स को बाय हार्ट करने का, ये रीड दिस बुक। क्योंकि बुक के कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया है। जब जो चैप्टर में डील कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर, अभी स्ट्रक्चर डील कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर की बुक्स की लाइन बाय लाइन पढ़ो, जहाँ फंस रहे हो वहाँ पूछो। अगर नहीं फंस रहे हो मतलब तुम्हें सब समझ में आ रहा है। तो दिस इज मतलब बहुत इजी वे है चेक करने के लिए कि मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, मतलब पूरे प्रोग्राम में, राइट। तो एरे स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, ठीक है। एरे स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पे एक, जैसे हम B1 B2 B3 डिक्लेयर करते थे, है ना। वी वर इनिशियली वी वर राइटिंग स्ट्रक्ट बुक B1 B2 B3 लाइकवाइज, ऐसे हम लिखते थे। तो अब अगर मुझे सपोज 100 बुक के डेटा को स्टोर करना है ना, 100 बुक का नाम, प्राइस और पेजेस स्टोर करना है, तो पहली बात तो हम 100 एज सच वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ की एक वेरिएबल में ये 3 वेरिएबल इनसाइड है ना। हर वेरिएबल के अंदर ये 3 वेरिएबल है। लेकिन ऐसे ऐसे भी हमारे पास 100 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ जाते हैं। इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए वी कैन यूज स्ट्रक्चर एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो एरे पहले जैसा एरे हमारा क्या होता था, इंटीजर टाइप का एरे होता था, है ना। तो इंटीजर टाइप का एरे होने पे वी कैन स्टोर ओनली इंटीजर्स इन द एरे, है ना। अभी क्या होगा, स्ट्रक्ट बुक टाइप का अगर एरे होगा तो वी कैन स्टोर दिस टाइप ऑफ वैल्यू इन एरे, है ना। तो पहले वाला जो हमारा एरे था वो कुछ ऐसा था,
सपोज 100 लिया है ना, डॉट 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 ढेर सारा बॉक्स, तो 0 1 2 3 डॉट डॉट, दिस इज 99, ऐसे ब्लॉक्स थे। और एक में मैं क्या रख सकता था, 5 6 7 8, ऐसा समथिंग। अब इस टाइप का जब एरे डिक्लेयर होगा तो इट वुड बी लाइक ऐसा, है ना। इसमें भी होगा 0 1 2 डॉट डॉट बहुत सारा, 0 1 2 बहुत सारे ब्लॉक्स, एंड 99 इसमें भी ब्लॉक्स है। अब ये ब्लॉक्स है, सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। अब इसमें इंडिविजुअल में तीन तीन पार्ट होंगे, मतलब इसके अंदर ऐसे मान के चलो कि तीन पार्ट होंगे। एक का नाम होगा नेम, एक प्राइस एंड एक पेजेस, ये ठीक है। इसके अंदर भी ऐसा ही होगा, इसके पास भी ऐसा ही होगा। तो हाउ टू एक्सेस, हाउ टू फील, दैट मैंने बताया। इसमें अगर इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वी आर राइटिंग ए ऑफ 0, फाइन। यहाँ भी मुझे अगर इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा बी ऑफ 0। इस पूरे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो बी ऑफ 0। यहाँ क्या है, इस पूरे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो ए ऑफ 0, यहाँ भी। लेकिन हमें इसके अंदर तीन और वेरिएबल है, तो उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो वी विल राइट बी ऑफ 0 वाला जो एलिमेंट है उसका जो नेम है, दैट नेम फर्स्ट। बी ऑफ 0 के के अंदर जो प्राइस वाला पार्ट है, दैट प्राइस, बिकॉज प्राइस यहाँ भी है, प्राइस यहाँ भी है, प्राइस यहाँ भी है, और प्राइस यहाँ भी है, हर जगह है। तो किसका प्राइस, तो B0 का प्राइस, B1 का प्राइस, B2 का प्राइस। तो ऐसे हम इंडिविजुअल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, और यही चीज यहाँ पे इसने लिखा हुआ है ना। स्कैन करना है, सारे में वैल्यूज फिल करनी है। तो बी ऑफ आई, आई की वैल्यू कहाँ, 0 से लेके 99, यहाँ से लेके, तो B0 B1 B2 ईच टाइम, और 0 का नेम, B0 का प्राइस, B0 के पेजेस, फिर B1 का नेम, B1 के प्राइस, B1 के पेजेस, B2 का नेम, B2 का प्राइस एंड B2 का पेजेस। ये एवरी लूप में ये सारा वैल्यू स्कैन हो जाएगा और ये एरे को इनिशियलाइज कर देगा। सिमिलरली व्हेन वी विश टू प्रिंट इट, you can check it out, this part simply in B0 का नेम, B0 का प्राइस, B0 का पेजेस। जब आई की वैल्यू 0 होगी, जब आई की वैल्यू 1 होगी प्लस प्लस, तब B1 का नेम, B1 का प्राइस और B1 के पेजेस। So hopefully you are getting this point till date. I am right. Okay, then I just write a program and we'll check that whether things are working the way I told you or not. Right, so I am opening code block, need to share complete screen, and we will check here. So what we are learning, structure, no? So structure. That program भी open कर लेते हैं, so that ये imaginary addition का program था और ये एक simple structure का program था, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, फिर उसके वेरिएबल डिफाइन किए थे, और इंटीजर से मैंने कंपेयर करके दिखाया था कि कैसे इंटीजर काम करता है और कैसे स्ट्रक्चर काम करता है। ये प्रोग्राम मैंने भेज दिया था आप लोगों को। देन हमने इसका एक एप्लीकेशन यूज़ किया, दो रियल नंबर की एंट्री करी और फिर दोनों रियल नंबर को ऐड किया ना। नाउ वी विल लुक फॉर नेक्स्ट, ये वाला है ना। जस्ट लेट मी कॉपी दिस पार्ट, जस्ट इट हियर। अभी हमें क्या करना है, एक वही टेस्ट करना है। तो एक्स वाई एंड जी, हम वी आर टेकिंग थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इन ए सिंगल
Now we will check the array of structure. This program is about array of structure. So int main, ठीक है। अभी मेन में हमें क्या करना है? सबसे पहला हमें क्या, ऐसे ऐसे बहुत सारे, नो, टेक टेक दिस एज student स्टूडेंट, है ना। और ये इसका रोल नंबर है, थोड़ा सा फील आएगा। एंड दिस इज परसेंटेज एंड दिस इज ग्रेड। तीन चीजें हमारे स्टूडेंट की है। अब ऐसे ऐसे 100 स्टूडेंट हमारे पास, तो 100 नहीं, मैं सिंप्लिसिटी के लिए 5 स्टूडेंट लेता हूँ, नॉट इंट बट struct स्ट्रक्ट स्टूडेंट का एक s ऑफ, एक वेरिएबल है एरे नेम s, और s ऑफ सपोज मैं 3 लेता हूँ। बहुत सिंपल प्रोग्राम। अब इस तीन वेरिएबल क्रिएट हो गया हमारे पास। s0, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो 3 वेरिएबल्स आर देयर। एक है हमारा s0, सेकेंड वन इज s1 एंड थर्ड वन इज s2। तीन वेरिएबल हमारे पास अभी, ठीक है। अब तीनों वेरिएबल में हमें क्या लेनी पड़ेगी, वैल्यूज लेना लेना पड़ेगा। सो आई हैव टू राइट printf /n enter values of the structure array। wait a minute, of the structure array, right? And then we should say /n. And also need to write this, right? So this is it. Now I will write for loop। कितने टाइम चलेगा for loop? I will start from 0, I is less than 3, जो साइज है array का, and I equal to I plus 1। ठीक है। अभी हमें स्कैन करना है, सिंपली वी विल से scanf, ठीक है, scanf। और scanf के अंदर हमें क्या करना है, तीन वेरिएबल के स्कैन करना है। पहला वेरिएबल कैसा है, मतलब हमें, देखो ध्यान दो, हमें क्या करना है, s ऑफ i का रोल नंबर एक्सेस करना है, मतलब एवरी स्टूडेंट के लिए उसका रोल नंबर। फिर सॉरी, वी शुड राइट इट एम्परसेंट, एंड देन वी हैव टू राइट एम्परसेंट s ऑफ i, है ना, हर स्टूडेंट के लिए उसका परसेंटेज एक्सेस करना है। देन वी हैव टू राइट एम्परसेंट s ऑफ i डॉट ग्रेड। ग्रेड को मैं g को स्मॉल कर देता हूँ, हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना है, ये तीनों वेरिएबल किसके टाइप के हैं, रोल नंबर इंटीजर टाइप का है, सो वी शुड राइट परसेंटेज d। परसेंटेज फ्लोट टाइप का है, वी शुड राइट दिस। एंड ग्रेड इज कैरेक्टर टाइप, सो वी शुड राइट दिस सिंपली। कोई इससे डिपेंड करता ही नहीं है, सब बात इस पे डिपेंड कर रही है, जो कौन सा वेरिएबल हम एक्सेस कर रहे हैं। सो इट शुड वर्क, है ना। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। Oh, I is not declared, so we need to declare I in I, ठीक है। Now we are running, बोल रहा है enter the values of structure array। तो पहला structure array के लिए we will run, क्या ले रहा है ये? देखो मैं by mistake, तो ये 0th array के लिए तीन चीजें स्कैन करेगा, है ना। तो यहाँ if we could put a printf, so it would be beneficial for the first time, not the every time। anyway, हमें अभी अपने हिसाब से ही पहले तीन वैल्यूज हमें एंटर करनी है। पहला वैल्यू रोल नंबर इज 001, दूसरा परसेंटेज सपोज 90.5,
and third is grade, so grade is A. ठीक है. So let me print it, then only we can get the details. So the values of structure array are nothing but this. Okay, so I'm taking one more slash in and print, right? And need to remove this. Is there any chat? There's chat joined. So difference check करते हैं अभी क्या हो रहा है program. हाँ? I'm entering 001, I'm entering 90.5 and entering a grade A. Okay, see. ये तो mess हो गया पूरा का पूरा. Slash C and slash D. Let me print this way. First time slash N. Okay, 001 90.5 grade is A. So ये देखो क्या print कर रहा है. Now it is printing 1 90.5 is and not printing or this variable. Okay, और बाकी तीन दोनों ही के लिए गार्बेज वैल्यू हमें प्रिंट करके दे रहा है. कैन एनीवन टेल मी व्हाई? नाउ दिस इज द टाइम फॉर डायग्नोसिस. क्यों हो रहा है ऐसा? हम्म. Who is there? चिराग. प्रखर. प्रखर मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? ये समझ में आया प्रोग्राम? Yes, sir. क्या समझ में आया बताओ? सर मतलब गार्बेज वैल्यू क्यों प्रिंट हो रही है वो? हाँ, ये पहले ये बताओ ये प्रोग्राम में क्या मैंने लिखा है ये बताओ. सर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें एक स्टूडेंट के मतलब रोल नंबर, परसेंटेज और ग्रेड हम एंटर कर रहे हैं. ठीक है, गुड. आगे. फिर सर हमने मतलब एंटर करें उसके तीनों जो थे और फिर उसको प्रिंट कराया. पहले इसको ये क्या है जो मैंने हाईलाइट सर किया था? मतलब उसमें 3 स्टूडेंट्स के सर इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे. ये क्या है? ओके, लेट मी. ये क्या है? करण आहूजा. सर करण आहूजा. यस सर. ये क्या है? यस सर. ये सर ये एरे है. है ना? अब ये क्या है? सर ये एरे के पास में कमेंट आपने लिखा है एक एक्सप्लेन करने के लिए. नहीं वो अलग. ठीक है, ये क्या है? दिस इज एन एरे ऑफ टाइप ये स्टूडेंट. है ना? जैसे एरे ऑफ टाइप इंटीजर यस सर. होता है यस सर. है ना? यस सर. ऐसे इसको ऐसे रीड करें क्योंकि जब वाइवा होगा तो एक्सटर्नल ऐसे ही पूछेगा आपसे कि अच्छा बताओ एरे ऑफ. तो वहाँ पे आपके पास अगर टेक्निकल वर्ड्स नहीं होंगे तो आता होगा बट यू कैन रिस्पॉन्ड. जैसे यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था ना. ओके सर. हाँ देखो मैं बता रहा हूँ. दीज आर वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर एंड दीज आर वेरिएबल ऑफ टाइप डेमो स्ट्रक्चर. है ना? एक डेमो है जो क्या है? स्ट्रक्चर है. तो इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लोग इसको रीड करें तो इजी होगा हमारे लिए. वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर एंड वेरिएबल ऑफ टाइप डेमो व्हिच इज एन स्ट्रक्चर.
है ना, डेमो टाइप का है ये। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि बस इतना ही लिखने से हमारा काम चला जाएगा, जैसे इंट ए बी वैसे ही डेमो सी डी हो जाएगा, तो ये लिखना नहीं पड़ेगा इतना हमें, दैट वी विल लर्न। ठीक है। आगे मानव, मानव मखीजा, नॉट रिस्पॉन्डिंग, यू कैन टर्न ऑन योर माइक मानव। आगे क्या किया मैंने ये बताओ यहाँ पे। सर यहाँ पे आपने वैल्यू स्कैन करी है सब पर्टिकुलर के हिसाब से, जैसे रोल नंबर, ग्रेड, परसेंटेज, ग्रेड के हिसाब से यहाँ पे स्कैन करा है और फिर प्रिंट करा है। तो अभी ये बताओ कि ये सारी वैल्यूज को स्कैन नहीं कर रहा है, क्यों? मतलब लूप हमारा जब आई की वैल्यू 0 हो तो 0 0 0 एक बार में 0 सेट हो जानी चाहिए, या फिर हम लोग कुछ एंट्री में मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या? एक बार और रन करके सर इसका दिखाता हूँ। आइडिया नहीं है। कोई नहीं कोई नहीं, दैट यू हैव टू लर्न ना। एक बार मैं और इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ, एंड देन इट्स योर जॉब, क्योंकि ये आज का लैब टाइमिंग है ना। आई एम राइटिंग 1 1 is 98.5 ए, ये देखो। तो यहाँ पे इसने दो वैल्यूज को स्कैन किया। नाउ दिस इज ए डिबगिंग चैलेंज टू यू। अभी क्या करना है, जो मैंने सिखाया था कि टेस्ट, एक प्रिंट स्टेटमेंट होता है, टेस्ट प्रिंट, है ना, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्रिंट प्रिंट एफ बी राइट, सॉरी सॉरी दिस इज नॉट द सिंटैक्स, कैरेक्टर को बाद में स्कैन नहीं करते ना इंट टेस्ट। के, नहीं तो वो सर एंटर को ले लेता है। हाँ, तो आप यही चेक करना, ये टेस्ट वाला जो है ये प्रिंट एफ यूज करो, और आप जो भी प्रमोट कर सकते हो इसको यूज करो, एंड डिबग दिस प्रोग्राम, करेक्ट करो कि यहाँ पे ये एक ही बार स्कैन क्यों कर रहा है ना, एक ही वैल्यूज को क्यों स्कैन कर रहा है, ये मतलब एक राउंड चल रहा है, दूसरे राउंड ये जा नहीं रहा, और उसमें भी हमारा कैरेक्टर स्कैन हुआ नहीं, है ना, यहाँ ध्यान से देखना, कैरेक्टर स्कैन हुआ नहीं। तो व्हाट वी नीड टू चेंज इन दिस ऑर्डर, और वेयर इज द प्रॉब्लम। तो अभी इसको फाइंड आउट करो, ये मैं प्रोग्राम अभी आपको ग्रुप में भेजता हूँ, सॉर्ट इट आउट एंड सेंड इट टू मी। ठीक है, मैंने शेयर किया है, नाउ सॉल्व इट एंड सबमिट इट टुडे, मतलब ये सेशन खत्म होने से पहले सबमिट करना है। आप वो ग्रुप में ही सेंड कर दो बाय राइटिंग योर नेम, ठीक है।